Very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. My dear student of class ninth, today we are going to start the second chapter of the book Moments, and the name of the chapter is The Adventures of Toto. That is written by a very famous Indian writer, Ruskin Bond. Ruskin Bond, let us come to know something about the writer. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Mussoorie, India. He is an Indian author of British descent. He is considered to be an icon among Indian writers and children's authors as a top novelist. He was awarded the Sahitya Academy Award to honor his work of literature. So, in this way, we can come to know that Ruskin Bond, who was an Indian writer, was a very great writer. Now, let us come to the story. This present chapter, The Adventures of Toto, is a very funny story, very humorous story. The narrator of this chapter, The Adventures of Toto, is now going to start the chapter. The narrator's grandfather was very much fond of animals. Already I have told you, my dear student, that this chapter is very funny story, very funny chapter. So let's start. The narrator's grandfather was very much fond of animals. He had a nice collection of animals such as a tortoise, a tame squirrel, a pair of rabbits and a goat. ओके माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि नैरेटर के जो ग्रैंडफादर थे, जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, उनको एनिमल्स को पालने का बहुत शौक था. दैट्स वाई ही हैड केप्ट इन हिज हाउस वन टॉर्टवाइज, एक कछुआ रखे थे, वन टेम स्क्वायरल, एक स्क्वायरल उनके पास था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एंड अ गोट. बट ही डिड नॉट हैव अ मंकी. सो वन डे ही bought a monkey from a tanga driver, and the cost of that monkey was 5 rupees. एक दिन grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. grandfather ने एक दिन एक मंकी, छोटा सा मंकी जो था, उन्होंने एक तांगा ड्राइवर से खरीदा और उसको 5 रुपीज़ में खरीदा. एंड द ग्रैंडफादर नेम्ड द मंकी टोटो, और उन्होंने मंकी का नाम क्या रखा? टोटो रखा. दैट्स वाई द चैप्टर एंटाइटल्ड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और उस मंकी का नाम उन्होंने टोटो रख दिया. नाउ ग्रैंडफादर वाज वेरी हैप्पी बिकॉज सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स ही हैड इन हिज हाउस. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू tortoise, squirrel, pair of rabbits, goats, too much animals already he had. Now he had one new small animal, very pretty monkey named Toto. So now grandfather was very happy. ग्रैंडफादर अब बहुत खुश थे टोटो के घर पे आ जाने से. टोटो वाज एन अट्रैक्टिव मंकी विद स्पार्कलिंग आइज एंड पर्ल वाइट टीथ, एंड he would take special delight in scaring elderly Anglo-Indian ladies. His tale added to his good luck and also served as a third hand. Since grandmother did not have any interest in animals, she never welcomed grandfather with a new bird or animal in the house. टोटो जो था बहुत ही प्रेटी एक मंकी था, लेकिन ग्रैंडफादर को तो बहुत अच्छा लगता था बहुत सारे एनिमल्स को घर में रखना, लेकिन ग्रैंडमदर जो थी उनको बिल्कुल भी एनिमल्स में इंटरेस्ट नहीं था. इसलिए जब भी ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल्स लाते थे, ग्रैंडमदर को बहुत गुस्सा लगता था, बहुत गुस्सा हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, उनको नहीं अच्छा लगता था. दैट्स वाई दिस टाइम व्हेन ग्रैंडफादर बॉट दिस मंकी ही केप्ट इट सीक्रेट. उन्होंने क्या किया? ग्रैंडफादर ने इस बार जब मंकी को खरीदा तो सोचा कि ग्रैंडमदर गुस्साएंगी, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको सीक्रेट रखते हैं, ग्रैंडमदर से बताते नहीं है. टोटो वाज टेम्पररली kept in a little closet opening into the narrator's bedroom wall, where he kept, and he all of a sudden he was tied securely to a peg fastened into the wall. क्योंकि टोटो को छुपा कर रखना था, ग्रैंडमदर को बताना नहीं था, इसलिए उसे एक लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट माने जो द कबर्ड दैट इज ज्वाइन टू द वॉल, उससे अलमारी के पास उसे छोटे से एक रस्सी से बांध दिया गया. Being mischievous by nature, Toto began to create a nuisance. From the very first day, he removed the ornamental
wallpaper, pulled out the peg and tore off the narrator's blazer. लेकिन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द मंकी टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस, बहुत शरारती था, बहुत नोटी था। तो चूंकि वो बांध कर रखा गया था, लेकिन वहीं से वो क्या करता है, वॉलपेपर जितने लगे हुए थे, डेकोरेटिव वॉलपेपर्स थे, उसको फाड़ देता है वो, और बहुत सारे पेग को रिमूव कर देता है, और टोर ऑफ द नैरेटर्स ब्लेजर, और नैरेटर के ब्लेजर जो रखा हुआ था वहाँ पर टंगा हुआ था उसे फाड़ देता है। ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी टोटो परफॉर्मेंस, लेकिन ग्रैंडफादर को जरा भी गुस्सा नहीं आया, उसको देख करके, उसकी एक्टिविटी को देख करके जरा भी गुस्सा नहीं आता है, बल्कि वो उसे देख करके बहुत खुश होते हैं उसकी एक्टिविटी को देख करके। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। फाइनली टोटो वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज that was in the servants quarter where grandfather's other animal lived together। ग्रैंडफादर ने देख उसके बाद टोटो को वहाँ रूम से निकाल करके उसको बड़े केज में लाकर रख दिया जहाँ पर सारे एनिमल्स रहते थे। बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल्स फॉर देम ऑल्सो, ही डिड नॉट लेट देम स्लीप पीसफुली। लेकिन टोटो वहाँ भी अपनी मिस्चीवियस की वजह से जाने जाने लगा, क्योंकि वो सारे एनिमल्स को बहुत परेशान करता था, किसी को रिलैक्स होकर के सोने नहीं देता था। हिज पेर्निशियस एक्टिविटीज़ वर इंक्रीजिंग डे बाई डे। वो बिल्कुल उसकी एक्टिविटी से अपने सबको क्या करता था, वो बिल्कुल परेशान करते रहता था। सो व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, आफ्टर दैट द ग्रैंडफादर फाइनली डिसाइडेड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। ही टुक टोटो ऑल्सो विद हिम इन अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। जब ग्रैंडफादर सहारनपुर जा रहे थे अपने पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने टोटो को भी साथ में ले लिया और उसे एक ब्लैक कलर के कैनवास के किट बैग में उसे रख लिया, बैग में रख दिया टोटो को। सिंस देयर वाज नो ओपनिंग इन द बैग अलाउ हिज हैंड्स और फेस टू कम आउट, ही वुड ऑफन जंप इनसाइड द बैग मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर ऑफ द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। लेकिन टोटो चूंकि उस बैग में पैक था, निकल नहीं पा रहा था, तो रोलिंग कर रहा था, इधर उधर उछल कूद रहा था। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वो उछलने लगता है। ऑन रीचिंग सहारनपुर टोटो वॉज कॉट बाय द टिकट कलेक्टर हु क्लासिफाइड हिम एज ए डॉग। और जब आगे बढ़ते हैं तो टिकट कलेक्टर जो था उसको देखता है और उसे लगता है कि ग्रैंडफादर ने अंदर कोई क्या किया है, डॉग रखा हुआ है। तो डॉग रखने की वजह से वो टिकट कलेक्टर उनको डाउट होता है। एंड टोटो कंटिन्यू टीजिंग एंड टोटो वाज ऑलवेज जंपिंग इन द बैग, दैट्स वाई टिकट कलेक्टर ने जब उसे देखा तो समझा कि अंदर कोई डॉग है, तो ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि इसके लिए भी उसे पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी उसे पैसे देना पड़ेगा। फाइनली द ग्रैंडफादर पेड फॉर दैट। टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंडमदर। उसके बाद ग्रैंडफादर उसको लोग के घर पे आ जाते हैं वहाँ से सहारनपुर से, और फाइनली टोटो वाज एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंडमदर ऑल्सो। ही वॉज गिवन अ comfortable home in the stable. He was then shifted to the stable where Nana, N-A-N-A, Nana, a new character here, and Nana actually who was a family donkey lived there. ऑलरेडी आप टोल्ड यू कि उनके ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे एनिमल्स थे, जिसमें एक डंकी भी था जिसका नाम था नाना। नाना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यू मस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अबाउट नाना। नाना एक डंकी था जो उस फैमिली का एक मेंबर था। तो नाना फाइनली टोटो को वहाँ नाना के पास, उस डंकी के पास शिफ्ट कर दिया गया जहाँ डंकी रहता था। बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड। लेकिन टोटो जो कि बहुत ही मिस्चीवियस था, वो वहाँ पर भी जाकर सबको टीज करने लगा, परेशान करने लगा, और टोटो और नाना में भी कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। और टोटो जो कि बहुत ही मिस्चीवियस था, वो हमेशा परेशान करता रहता था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपैरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्थ एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे। बार बार उसको, नाना को परेशान करता था टोटो, इसलिए वो कभी भी एक फ्रेंड नहीं बन पाए। टोटो लव टू टेक बाथ इन हॉट वाटर इन विंटर। वन डे ही नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव बाय जंपिंग इन ए लार्ज किचन केटल दैट हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। टोटो जो था उसे ठंडी के दिन में गर्म पानी से नहाना उसे बहुत ही पसंद था, और एक दिन वो किचन में एक
गैस पर एक बड़े बर्तन में पानी बॉयल करने को रखा गया था चाय के लिए, उसमें वो जंप कर जाता है। इट वॉज द ग्रैंड मदर हु केम टू हिज रेस्क्यू एंड सेव्ड हिम, बट लकली ग्रैंड मदर ने उसे देख लिया पानी में, बॉयल पानी में गिरते हुए, और उसे सेव किया, अदरवाइज टोटो उसमें बॉयल्ड हो गया होता। टोटो कंटिन्यूड हिज एंटिक्स बाई टीयरिंग क्लॉथ्स टू श्रेड, ब्रेकिंग प्लेटेड एंड अदर यूटेंसिल। लेकिन टोटो की जो बदमाशी थी, जो शरारतपन था उसका, वो कम नहीं हो रहा था, और उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बर्तन तोड़ देता है, कपड़े फाड़ देता है, और बहुत सारे बर्तन को इधर उधर वो स्प्रेड कर देता है। इससे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एवरी वन इन द फैमिली गॉट फेड अप विद हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़। इवन ग्रैंडफादर बिगेन टू थिंक सीरियसली अबाउट हिम। और जब लगा कि बहुत ज़्यादा ये शरारत कर रहा है, बहुत सारा नुकसान कर रहा है, बर्तन तोड़ रहा है, बहुत सारे कपड़े फाड़ दे रहा है, तो ग्रैंडफादर टुक ऑल्सो इट सीरियसली एंड फाइनली ही टुक अ हार्ड डिसीजन टू गेट रिड ऑफ द मंकी। फाइनली ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू रीसेल इट। ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि इसको दोबारा बेच देना चाहिए बाहर कहीं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। एंड ही फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। ऑलरेडी आई हैव इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर माय डियर स्टूडेंट वी हैव रेड कि ग्रैंडफादर ने उसको 5 रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन वो टोटो जो मंकी जो था इतना ज़्यादा मिस्चीवियस था, इतना ज़्यादा बदमाशी करता था, जिसकी वजह से फाइनली ग्रैंडफादर ने उस टांगा ड्राइवर से फिर से उसे वापस बेच दिया, जस्ट फॉर ओनली 3 रुपीज़ में। 3 रुपीज़ में उसे केवल वो बेच देता है। एंड हियर द चैप्टर इज गेटिंग ओवर। So already I have told you, my dear student, the chapter is very interesting, very entertaining, very amusing, and already I have told you the activities of Toto will really amuse you. I hope you have got the substance of the chapter. You have got each and every lines of the chapter also. So my dear student, again we will meet in the next video. Thank you.